Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Yes, and welcome. Today's case is a very different case, and this case gives you a lot of knowledge for understanding of the rubrics. Yes. So, we only 11 delegates, I know. Should I wait or directly start the case? Okay, so today's case is hemangioma with paraplegia with decubitus. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना? Yes, anyone? Yes, sir. Yeah. Okay. So, what is hemangioma? What is decubitus? Who will tell hemangioma? Yes, fast. Yes, somebody else. Oh, what is hemangioma? बोलिए फटाफट. तो नहीं, किसी को नहीं पता हेमेंजियोमा डेक्यूबिटस. Blood Yes, tumor of blood vessels, hemangioma. hemangioma. Growth, structure or tumor of vessels. You know? Yes. But यहाँ पर hemangioma, it is tumor of nose, spinal cord की ये केस है with decubitus. Decubitus मतलब the deep, big ulcer or bed sores. So 55 years old male,
having hemangioma. Hemangioma, it is a vascular malformations. This condition is very rare in bone, but may occasionally involve the spine also. So इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होना, हिमेंजियोमा होना, इट इज वेरी रेयर केस। और उस वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पैरालिसिस, नमनेस इन लेग्स, वही सब इस केस में हुआ, बट आफ्टर सर्जरी हुआ। yes. तो हिमेंजियोमा ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, माल फॉर्मेशन होता है, तो इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। बट किसी किसी केस में फास्ट ग्रोथ होना, फास्ट डिजीज अफेयर होना, प्रोग्रेस होना, ये भी बहुत रेयर होता है। सो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आज हम देखने वाले हैं। यस, क्योंकि इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ, डिजीज बहुत फास्ट हुआ, देन प्रोग्रेस ऑफ डिजीज बहुत फास्ट हुआ। ओके, एंड degradation of the case is also fast. So chief complaint of this patient: loss of sensation and power of both legs, loss of sensation and power of both legs, paraplegia, diffuse bed sore on pelvis and left hip, involuntary urination and stool, pain in cervical region, that means the starting of hemangioma at cervical region also, then tingling numbness in both hands, generalized weakness, shivering with tingling, severe shivering, shuddering, chills with tingling numbness in extremities. Yes, these are the chief complaints. Now the physical generals. Patient is very chilly, thirstless, appetite complete loss, desire for spicy things, stool involuntary, no sensation of stool and urine pass involuntarily, then sleep loss, profuse perspiration after chills, after shuddering. Yes. Now the history. So history of this patient. स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही? हाँ सर, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? नो No, सर। sir. नो। No, sir. ओके, अभी पुराना वाला ही स्क्रीन है सर, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन पुराना वाला ही फोटो है। ओके, अभी अभी आप बताइए, मुझे दिख रहा है? नहीं, इस समय प्लेन दिख रहा है सर। अभी प्लेन दिख रहा है अब सर, प्लेन। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है सर, प्लेन है। ऐसा क्यों हो रहा है? मालूम नहीं। हरिओम सर की फोटो दिख रही है। हरिओम जी का फोटो दिख रहा है? हाँ। अभी
दिख रही सर? Yes, sir. Yes, sir. अभी स्क्रीन दिख रही? यस सर। यस सर। पढ़िए स्क्रीन विजिबल। पढ़िए। It is a vascular malformation. This condition is very rare in bone, but many occasionally involve in spine. It involve the spine. ओके, पढ़ते जाइए। Chief complaints: loss of sensation and power of both legs, paraplegia, deep, huge bed sore on pelvis and left hip, involuntary urine and stool, pain in cervical region, tingling numbness in both hands, generalized weakness, shivering with tingling. अभी सर Physical सेकंड वाली journal. भी बताओ, उस पे एज है सर, सेकंड स्लाइड भी नहीं दिखी एज और नेम, सिर्फ फर्स्ट दिखी। अरे ठीक है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। फिजिकल जर्नल सर। Thermal, chilly patient, thirst, thirstless, appetite, complete loss, desire, spicy, stool, involuntary urine, involuntary sleep, sleep loss, perspiration, profuse. History: he was poor labor, but one day when he came in contact with Guru, he devoted completely to Guru and God. ओके He started writing religious songs and became a good and ओके, well-known 1 minute Sai stop please. Okay, so I will read now the history of the patient. Bhakta. तो पेशेंट की हिस्ट्री ये मतलब अपने केस टेकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हिस्ट्री अगर हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो पूरी केस हमारी हिस्ट्री पे ही डिपेंड होती है, क्योंकि हिस्ट्री में से ही रूब्रिक निकलेंगे, हिस्ट्री में से ही मायाजम निकलेगा, और किस तरह से पेशेंट बोलता है और उसे हमें हमारे लिटरेचर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो हिस्ट्री जो पार्ट होता है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर पेशेंट की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है तो उसे पेशेंट के रिलेटिव से या फिर क्रॉस एग्जामिन में उसे कंप्लीट में अंडरस्टैंड किए बगैर कोई भी रूब्रिक अंदाज से लेना नहीं किया। नाउ द हिस्ट्री, he was poor labor, but one day when he came in contact with Guru, some spiritual person, basically he was very poor labor, working on field, working in farm, ना, but कुछ ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल पर्सन के कांटेक्ट में आया, देन उसी पर्सन को इन्होंने गुरु बनाया, एंड आफ्टरवर्ड he devoted completely to Guru and God. सब कुछ छोड़ के काम घर उस पर्सन के सेवा में लग गया। देन ही स्टार्टेड राइटिंग रिलीजियस सॉन्ग। फिर धीरे धीरे वो फेमस होने लगा। कुछ उसने कुछ एनर्जीज, कुछ पावर उस गुरु से, उस गुरु के टीचिंग से उसने पा लिए थे। उसके बाद उस एरिया में ये धीरे धीरे फेमस होने लगा। फिर ये कुछ गॉड्स पे, कुछ गुरु पे, कुछ स्पिरिचुअल रिलीजियस कुछ पोएम्स लिखने लगा, सॉन्ग्स लिखने लगा, और जो बोलते ना सत्संग करने लगा। He started writing religious songs and become a good and well-known hymns. तो एक संत के जैसी उसकी प्रतिमा उस एरिया में हो गई थी। तो बेसिकली ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड, बट थोड़ा बहुत ही शायद थर्ड या सेकंड या थर्ड ही पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो राइटिंग करता था। बहुत ही मतलब उस राइटिंग से, उस रिलीजियस सॉन्ग से उसके अंदर की थिंकिंग उसमें दिखती थी कि कितनी डीप थिंकिंग है इसकी, कितना डीप नॉलेज इसे है। His family consists of wife, son and daughter. He feels very sad because since last 3 years his daughter is living with him. शादी के बाद
कुछ हस्बैंड वाइफ में उनके झगड़े होते थे लड़की के और डॉटर इन लॉ के, तो उस वजह से वो लड़की इनके यहीं रहने के लिए आ गई। इन स्पाइट ऑफ मैरिज बिफोर 8 months हिज सन इन लॉ, कुछ 8 महीने पहले उसका जावाई उनके यहाँ आया, टेकन हर टू इन लॉज हाउस, और उसके लड़की को लेके जाने के लिए आया और वो शायद लेके भी गया, एंड कॉरल विथ हर, उसे लेके गया, उसके बाद वापस उससे झगड़ा किया, बिटन वेरी ब्रैडली एंड एक्सपेल्ड हर, हेंस डॉटर अगेन केम टू हिज हाउस। कुछ ही दिन में उसने उसे वापस मैके भेज दिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट सन इन लॉ केम टू हिज हाउस, फिर कुछ दिन गए, उसके बाद वापस वो उस लड़की का हस्बैंड वापस इनके यहाँ आया, एंड अब्यूज हिम एंड फैमिली इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, जिसकी इमेज बहुत अच्छी है, लोग उसे उस एरिया में मसीहा मानते हैं, गॉड की गॉड के जैसा उसे मानते हैं, उसके साथ ट्रीट करते हैं, और उस पर्सन की इमेज इतनी अच्छी है, गांव में सब लोग उसे संत के जैसा मानते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई आता है और उसे अब्यूज करता है तो क्या होगा, है ना। सो हाउस and abuse him and family in front of the many people, the villagers, for which he felt very angry but could not do anything. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जो उनका डॉटर इन क्या सन इन लॉ था, वो मतलब इतने नीचे लेवल की गालियां दे रहा था, कुछ गलत सलत बोल रहा था, बहुत ही बैड वे से उन्हें अब्यूज कर रहा था। इन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सो हाउएवर ही रिक्वेस्टेड सन इन लॉ टू लिव। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने उससे हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। नेक्स्ट डे ही लॉज कंप्लेंट विथ पुलिस स्टेशन बट नोबडी हेल्प। नेक्स्ट डे ये पुलिस स्टेशन गए, इन्होंने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लॉन्च की, बट पुलिस स्टेशन में भी उनका किसी ने नहीं सुना, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है फैमिली मैटर्स में, पुलिस वाले भी कुछ हेल्प नहीं करते, कंप्लेंट ले लेते हैं, सुन लेते हैं और कुछ समझा बुझा के रिटर्न कर देते हैं। तो इनको भी ऐसा ही लगा कि इन पर्सन्स ने, इन पुलिस लोगों ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। आफ्टर 8 days he felt numbness and loss of power in legs. उसके 8 दिन बाद ही पैर में नमनेस आना, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ पावर आना शुरू हो गया। So loss of power in legs, and in spite of full bladder he could not pass urine, and loss of control of urine also, sensation of urine also वहां से चला गया। So immediately he was admitted to hospital and treated for 6 months. तुरंत उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया, बट नियर अबाउट 6 months तक वो हॉस्पिटल में थे, फिर भी नो रिलीफ, बट विदाउट रिलीफ हिज जनरल कंडीशन वाज डिटेरियोरेटेड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। उनकी जनरल कंडीशन इतनी डिटेरियोरेट हुई, रिलीफ तो 1% भी नहीं हुआ, बट कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ गए, जो उन्हें बेड सोर्स हुए, वो उसी हॉस्पिटल में बेड सोर्स हुए, बेड सोर्स का ऑपरेशन भी उन्होंने किया, फिर भी पैराप्लेजिया तो अच्छा हुआ ही नहीं, हेमेंजियोमा अच्छा हुआ नहीं, और बदले में उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए। देन reports MRI of spine is degenerative changes. Degenerative changes at multiple vertebral bodies show focal hyperintensity suggestive of hemangiomas.
osteophytes formation. Yes. So this is the MRI report. Now tell me the miasm. इसके पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ. ओके. सिफिलिस है सर. यस, माइजम इज सिफिलिस, बट साइकोसिफिलिटिक आएगा ना, हिमेंजियोमा. यस सर. Yes, sir. सो हम पहले वीडियो देख लेते हैं. Hello. Video is visible or not? नॉट सर. दिख रहा है sir. अभी Visible है sir. दिख रहा है सर. हॅलो दोन्ही पाय. फोटो 6 महिने झाले, पाय हलत नाहीत बिलकुल. लेफ्ट आप देखिए वहां पे आपको क्लियर कट हेड ऑफ दिख रहा है, राइट. अब एक क्या होता है, हम जब कोई मूवी देखने जाते हैं तो एक नोट आती है कि कमजोर दिल वाले कृपया इस फिल्म को ना देखें. तो उसी तरह से कुछ इस वीडियो में भी है. तो अगर कोई वीक विल्ड पर्सन होगा तो प्लीज इसे ना देखें. शाम का खाना आपको जाएगा नहीं. सर ये है क्या? देखिए आप और बताइए फिर क्या है. ना डेंजर है, देखो ना डीप है. कॉटन है क्या सर? अरे वो Sir, I बैंडेज. think gauze. गॉज डाला है. Gauze है sir. गॉज बैंडेज ऐसा है, अंदर बैंडेज. इतना? इन पैकिंग है, बीटाडीन पैक. 4-5 बैंडेज उसमें डाले हुए हैं, डीप अच्छा सीटेड है इसीलिए. वेरी डीप. अच्छा, इतना अंदर डाल के. इतना ऑफेंसिव स्मेल, नो सेंसेशन, नो पेन, इतना अंदर पूरा ठूस ठूस के भर दिया, फिर भी कोई मतलब ठीक तक है लेकिन कोई सेंसेशन नहीं, कोई पेन. ये देखिए इतना बड़ा गॉज, बाप रे बाप. इतना बड़ा बैंडेज इसमें से निकला. ना डीप है, वो सब पूरे ऐसे पॉकेट्स अंदर से हुए हुए थे. इतना पस उसमें से निकला जब फर्स्ट टाइम ओपन किया था.
So this was the case. Now miasm, it is syphilis, and the layer, that is third layer, connective tissue and nervous system, sixth layer. बट अब मुझे ये बताइए कि ये होता क्यों है? क्या मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्यों हीमेंजियोमा होता है, क्यों पैरालिसिस होता है, क्यों डेक्यूबिटस बेड सोर्स होते हैं? यस, यही तो सर कर रहे थे हम लोग पढ़ाने के लिए आपको। जी एंगर एंगर यही कॉन्फ्लिक्ट ही पढ़ाने के लिए तो बोल रहे थे आपसे। बराबर बराबर सर सेल्फ डिवेल्युएशन का कॉन्फ्लिक्ट। यस, सेल्फ डिवैल्यूएशन है ना? यस, सेल्फ डिवैल्यू होना, देन इंटीग्रिटी लॉस, एंगर एंगर एंगर, सप्रेशन है, Honor एंगर सप्रेशन। हाँ, ऑनर Anger suppression. इंज्योर्ड। ऑनर वुंडेड। हाँ यस, तो कौन से रूब्रिक्स इसके लिए लेंगे? कौन से रूब्रिक्स हमारे रेपर्टरी में हैं सेल्फ डिवैल्यूएशन के लिए, और डिवैल्यूएशन के लिए कौन से रूब्रिक्स है? क्या क्या रूब्रिक्स दिए है? कोई बोल सकता है कि एक 5-6 रूब्रिक है, 10 रूब्रिक है? कितने रूब्रिक्स हो सकते हैं? नहीं पता। तो आज हम सेल्फ डिवैल्यूएशन के रूब्रिक ही पढ़ेंगे, राइट? ये सब रूब्रिक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इतने सारे कंडीशंस होते हैं, इतने सारे रूब्रिक्स हमारे रेपर्टरी में हैं, फिर भी हमें उसका नॉलेज नहीं है। पेशेंट हमारे सामने आता है, पेशेंट हर चीज हमें देता है, लेकिन हमारे अंदर वो विजन नहीं दिखने की, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, माइंड में ही नहीं है, तो विजन में कहाँ से आएगा, है ना? और जब सामने से होके भी जाता है तो हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट? सो द सेल्फ डिवैल्यूएशन। सो व्हाट इज द सेल्फ डिवैल्यूएशन? क्या होता है सेल्फ डिवैल्यूएशन? इसके एक्चुअली 2 टाइप्स है, जनरलाइज्ड सेल्फ devaluation and localized self-devaluation. So, in line with involuntary reasoning, self-devaluation conflicts are primary conflict theme associated with cerebral medulla control organs deriving from the new mesoderm. So, all diseases comes from new mesoderm, and cerebral medulla controls the organs. Yes. So a generalized self devaluation क्या होता है? क्या self devaluation का, generalized self devaluation का conflict होता है? Concerns with the whole person, the conflict is experienced, for example, through humiliation, accusation, scolding, derogatory remarks, abuse, physically or sexually or verbally, failure at work, at school, in sports, in a relationship, as a parent or partner. तो ये टाइप्स है जनरलाइज्ड डिवैल्यूएशन के। कहाँ कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हमें मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से हमें ये कॉन्फ्लिक्ट निकालना है, तो ये सब बातें अभी मैं आपको बता रहा हूं, जहां से ये सब हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम हिस्ट्री लेते हैं। तो डिवैल्यूएशन ओनली हम समझते हैं कि इंसल्ट होगा मतलब होगा, नो। डिवैल्यूएशन कैसे निकालना है पेशेंट से, तो देखो कितने कैटेगरीज इसमें आते हैं, जैसे कि एक्यूजेशन है, स्कोल्डिंग है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है। yes, थोड़ा Clear सर्व नहीं है। नहीं है।
नेट पढ़ने प्रॉब्लम आ लायक रहा है, मैसेज आया अभी, नेट प्रॉब्लम है कुछ। ओके, फिर भी मैं आपको सब पढ़ के ही बता रहा हूं। ओके, सो एट द वर्क, एट स्कूल, इन स्पोर्ट, इन अ रिलेशनशिप, एज अ पेरेंट्स। आप अगर अच्छी स्क्रीन दिख रही होंगी तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ओके, जी सर। यस। सो एब्यूजमेंट, एब्यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? तो फिजिकल एब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है, कोई कोई वर्बली एब्यूज कर देते हैं ना, अपन बोलते हैं ना, खाया पिया सब निकाल दिया, दैट इज एब्यूज, वर्बल एब्यूज। देन अ पुअर परफॉर्मेंस। अब पुअर परफॉर्मेंस कितने सारे चीजों में होता है, जैसे पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल है, होम है ना, इन रिलेशनशिप है, स्टडी है, वर्क है, बिजनेस है, कितने सारे इसमें पॉइंट्स आते हैं। सो पुअर परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड एथलेटिक, feeling of shame and guilt, the loss of status, the loss of workplace, retirement, illness or injuries. I am out of commission, aging, I am not as good as I used to. Yes, I am getting old and useless. ये भी एक, कल जैसे हमने प्रोस्टेट का किसी ने सवाल पूछा था, उसमें भी ये सेल्फ डिवैल्यूएशन होता है कि आई एम गेटिंग ओल्ड एंड यूजलेस, दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। देन और लॉस ऑफ पर्सन who made one feel appreciated and needed are other conflict scenario, the way we perceive ourselves or speak to ourselves. Yes, the way we perceive ourselves or speak to ourselves. I am a failure, जैसे कि हम खुद को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से हम खुद के लिए सोचते हैं, या फिर खुद के लिए क्या समझते हैं, लाइक दिस। सो आई एम अ फेलियर, आई विल नेवर सक्सीड, खुद के लिए अनफॉर्चुनेट फील होना, क्रिएट मेंटल प्रेडिस्पोजिशंस फॉर जनरलाइज सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। तो जनरलाइज्ड जो ऑल ओवर ऑल टोटल rubrics for devaluation for himself. So children and the elderly are more vulnerable to suffer the conflict. Yes, children and elderly persons. So this is the generalized self-devaluation. Now, localized self-devaluation conflicts are related to specific part of the body. जैसे कि हैंडीकैप है ना, एखादा खुद के लिए सेल्फ डिवैल्यू खुद को कैसे करेंगे कि मेरा यह हाथ तो कोई काम का ही नहीं, मेरी ये फिंगर कुछ काम की नहीं, एखादे उंगली की वजह से, या फिर बहुत से पर्सन्स चेहरे पे जो ऐसे ब्राउनिश सर्कुलर कुछ मार्क्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से खुद को इतना डिवैल्यू कर लेते हैं, खुद का चेहरा छुपाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, किसी प्रोग्राम में जाएंगे नहीं, ये हो गया सेल्फ डिवैल्यूएशन बिकॉज ऑफ स्किन। किसी किसी को बात नहीं करते आती, इसलिए खुद को इतना डिवैल्यू कर लेंगे कि नहीं, मैं किसी के सामने बात करने के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा कर ही नहीं पाता, मैं ऐसा बोल नहीं पाता, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कुछ गलत निकला तो, लाइक दिस खुद को डिवैल्यू करते रहते बिकॉज ऑफ टंग, बिकॉज ऑफ स्पीच. So this is the part related devaluation, that is also called as localized devaluation. So related to specific part of the body, a poor artistic or athletic performance, for example, correspond to the hands or legs. A self devaluation conflict brought on by a cancer diagnosis, yes, like colon cancer, prostate cancer, breast cancer. A negative prognosis, नेगेटिव प्रोग्नोसिस है ना, ये बहुत लोगों में होता है, बहुत लोगों की थिंकिंग इतनी नेगेटिव हो जाती है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, हर चीज के लिए वो सबसे पहले नेगेटिव थिंक करेंगे. सो यू वोंट बी एबल टू ऑफ अगेन द रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन, दैट इज mastectomy.
ये तो इतने सारे लेडीज में ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स। बहुत से लेडीज का आफ्टर डिलीवरी एक दो बच्चे हो गए तो ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट एट्रोफी हो गई तो उनको इतना डिवैल्यूएशन लगता है, मतलब खुद को इतना डिवैल्यू कर लेते हैं उस बात की वजह से कि नहीं अब मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरा हस्बैंड मेरे तरफ अगर उसका अट्रैक्शन नहीं रहा तो अगर उसने किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो गया तो मैं अब अच्छी नहीं दिखूंगी, अब मेरे में मेरा हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेगा। कितने सारे डिवैल्यूएशन इस बात की वजह से आते हैं उनके माइंड में। यस, so continuous localized pain correlated to the nearest bone or joint. Yes, in comparison a moderate self devaluation conflict would involve the closest lymph node and muscle. So lymph node and muscle also come under this. So इनका भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डिवैल्यूएशन। तो ये है डिवैल्यूएशन के टाइप, सेल्फ डिवैल्यूएशन के टाइप। इसमें एक जनरलाइज, दूसरा लोकलाइज। नाउ हेलो सर। यस सर, जनरलाइज डिवोल्यूशन का एक बार फिर से फोटो दिखा दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी बढ़िया आ रहा है स्क्रीन सर, इसके पहले जो स्क्रीन था अच्छा नहीं था, एक बार हम लोग स्क्रीन ले लेंगे। यस, अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, ले लीजिए। नाउ the different rubrics come under the devaluation. So many rubrics are given in our repertory. Yes, so cross reference for devaluation rubrics. तो मैं आपको रुब्रिक पढ़ता हूं। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, दिस इज आल्सो द खुद को डिवैल्यू करना, डिवैल्यू हिमसेल्फ, डिवैल्यू फॉर सेल्फ, कि मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, है ना, मेरे में लायबिलिटी नहीं है, मैं 4 लोगों में बैठ नहीं सकता, मैं बाहर गया तो लोग क्या सोचेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। सो कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ इज आल्सो द टाइप ऑफ डिवैल्यूएशन। डिल्यूजन डिसग्रेस्ड, यस दिस इज डिल्यूजन, डिल्यूजन डिसग्रेस्ड हो जाना। देन डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, अनफॉर्चुनेट फील्स, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अनफॉर्चुनेट फील। डिल्यूजन वर्थलेस, मैं तो किसी काम का ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं। यस, डिल्यूजन डिस्पाइज का मतलब सर? डिस्पाइज्ड, बोलो, कोई भी बोलता बताइए। डिस्पाइज, व्हाट इज डिस्पाइज्ड? Hatred. Hatred. यस, और डिस्पाइज्ड एंड डिसग्रेस, दोनों का भी बताओ। इसके अंडर भी बहुत रूब्रिक है। डिस्पाइज के अंडर भी है, डिसग्रेस के अंडर भी। डिसग्रेस के अंडर तो बहुत सारे रूब्रिक्स है। डिसग्रेस बाय फैमिली, डिसग्रेस बाय फ्रेंड, डिसग्रेस बाय सोसाइटी, डिसग्रेस बाय रिलेटिव्स, बहुत सारे रूब्रिक्स आते हैं। फीलिंग मतलब ऑफ सर जो ग्रेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जी, फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फेक्शन सर, अनसेटिस्फेक्शन होने की वजह से अनईजी लगना। नो नो नो, Satisfaction. नहीं, डिल्यूजन है ये, डिल्यूजन डिस्पाइज। अब देखो कि सपोज
बहुत से पर्सन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि घर में दो बहू है, बड़े बहू को हमेशा लगता है कि ये छोटी जब से आई ना तो मेरी सास, घर वाले मुझे उस तरह से मान नहीं देते, उस तरह से अभी मुझे चाहते नहीं, मुझे रिस्पेक्ट देते नहीं, है ना। मुझे मुझे हर बार डिस्पाइज कर देते, मतलब मैंने कुछ बनाया भी तो उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, उसे कभी कोई अच्छा नहीं बोलेगा, और वही छोटी ने बनाया तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। दैट मीन्स एक हैट्रेड फीलिंग उस पर्सन में आ जाता है। ये ऑफिस में हो सकता है, स्कूल में बच्चों में हो सकता है, जहाँ कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हैं उस प्लेस में हो सकता है, देन रिलेटिव्स से हो सकता है, फैमिली मेंबर्स से हो सकता है, फ्रेंड्स लोगों से भी हो सकता है। सो डिल्यूजन डिस्पाइज्ड मतलब ये Hatred by डिल्यूजन होना someone कि other. लोग मुझे हैट्रेड करते हैं। यस, डिसग्रेस कर दिया, अब मेरी वो पोजीशन नहीं रही, डिसग्रेस्ड। यस, देन डिल्यूजन, यस, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, delusion worthless. Delusion succeeds never. Delusion small he is. देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक्स है एक थिंकिंग के लिए, दैट इज द डिवैल्यूएशन। देन डिल्यूजन स्मॉल ही इज। डिल्यूजन स्मॉल ही इज मतलब जो लोग खुद को कम समझते हैं, नहीं बाबा वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो पढ़े हुए हैं, है ना, उनके जैसे मैं नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़े हुआ नहीं हूँ, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ उनके साथ, मैं कैसे जा सकता हूँ उनके साथ, मैं वहां जाऊंगा बात नहीं हो पाएंगी मेरे से, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मैं उनके स्टैंडर्ड का, उनके लेवल का बात नहीं कर पाया, तो लाइक दिस। तो हर चीज में खुद को कम समझना, दैट इज द डिल्यूजन स्मॉल ही इज। then fear of failure, delusion legs cut off, delusion legs cut off, delusion body ugly, delusion body diminish, delusion small things appear, delusion insulted, delusion appreciated not, delusion laugh at। yes, है ना, लोग मुझे देख के हंसते हैं, लोग मुझे देख के बातें करते हैं, उसने मेरे तरफ क्यों देखा, वो मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रहा है, आ गई निगेटिव थिंकिंग माइंड में, तो खुद के लिए निगेटिव थिंकिंग करना शुरू कि मैं इतना बुरा हूं, मेरे में कुछ कमी है, लाइक दिस। सो डिल्यूजन लाफ एट। अब ये डिल्यूजन लाफ एट इतना अच्छा रूब्रिक्स है, सर ने एक केस दिखाए थे होमोसेक्सुअलिटी की, ये कंप्लीट क्योर सर ने इस रूब्रिक से केस की। यस, होमोसेक्सुअलिटी क्योर्ड विद दिस रूब्रिक, delusion laugh at. Then vision small, small object seen. Then support desire. So these are all self-devaluation rubrics. हेलो सर, एक Yes. क्वेश्चन, ये जो सर रूब्रिक है डिल्यूशन लाभ है, Yes. एक केस था सर, एक पेशेंट था, उसको लगता था कि लोग मेरी जेंटेलिया की तरफ देख रहे हैं। हेलो सर, हाँ ये बोलिए। रूब्रिक, हाँ, एक पेशेंट था जो उसको लगता था मेरे जेंटल पार्ट की तरफ लोग देख रहे हैं और मेरा जेंटल पार्ट बहुत छोटा है शायद इसलिए देख रहे हैं। तो क्या उसमें रूब्रिक है डिल्यूजन बॉडी पार्ट स्मॉल करके भी है, तो हाँ क्या वो उस ले रूब्रिक सकते को? हैं, यहाँ पे लाफ है, ओनली लाफ, यहाँ पे देख हाँ रहे हैं तो ऐसा नहीं। डिल्यूजन स्मॉल ही इज, डिल्यूजन ये ले सकते हो उसमें, स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिल्यूजन बॉडी अगली ये ले सकते हैं, डिल्यूजन बॉडी डिमिनिश ले सकते हैं, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स ले सकते हैं। यस, विजन स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक है देखते हैं। नाउ 17 रूब्रिक्स हमने देखे, अभी आगे के देखते हो। हाँ यस, 18 डिल्यूजन अनफिट वर्ड। यस,
ये भी रूब्रिक वहां पे आएगा डॉक्टर. डिल्यूजन अनफिट वर्ड. डिल्यूजन फेल एवरीथिंग. एंजाइटी सक्सेस. सक्सेस के लिए ऑलवेज एंजाइटी में रहना, दैट इज आल्सो सेल्फ डिवैल्यूएशन. अंडरटेक्स नथिंग, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है. कभी कभी खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे. इनिशिएटिंग लैक ऑफ, ये भी रूब्रिक आएगा. यस, कभी कोई किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते, इनिशिएटिंग ही नहीं करते, दैट इज इनिशिएटिंग लैक ऑफ. अंडरटेक्स नथिंग, पर पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक. बिजनेस अनफिट फॉर. Business ordinary they are pursuing. Discontented with himself. Honor sense no. Reproaching self. Remorse. Yes. Remorse also self-devaluation. है ना. आदमी, इंसान को तभी रिमोर्स होता है जब उसे लगता है कि मेरा गलत हो गया. दैट इज आल्सो सेल्फ डिवैल्यूएशन. देन सैडनेस फॉल्ट. Sadness wrong. Delusion wretch when looking in mirror. Yes, ऐसे लगता है कि मेरी स्किन अच्छी नहीं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है ना, मैं अच्छा दिखता नहीं. That is delusion wretch when looking in mirror. Delusion wrong done he is. Delusion suffered wrong. Delusion poor. Ambition loss of and hopelessness. There are 36 rubrics for self-evaluation. और आप देखो कि सेल्फ डिवैल्यूएशन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कितना बिग कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसके ये एक रूब्रिक के ऊपर कितने सारे डिजीजेस क्योर हो सकते हैं. कितने सारे डिजीज इज अंडर दिस रूब्रिक आते हैं, दिस कॉन्फ्लिक्ट आते हैं डिवैल्यूएशन. आप पूरे नर्व्स ले लो, मसल ले लो, जॉइंट ले लो, बोन्स ले लो, कार्टिलेजेस ले लो, नर्व्स, आर्टरीज, हेड, कितने सारे रूब्रिक्स हैं. स्पाइनल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज. तो ये 36 अगर रूब्रिक हमारे माइंड में फिक्स है, कितने सारे पेशेंट हम क्योर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिवैल्यूएशन. यस. सो नाउ टेल मी द रूब्रिक्स फॉर दिस केस. अब पूरे रूब्रिक्स आपने देख लिए, अब मुझे बताइए कि इस केस के लिए कौन सा रूब्रिक्स लेना चाहिए. Disgrace. Yes. Someone. Delusion disgrace. बोलिए बोलिए फास्ट. पूरे रूब्रिक्स आपने पढ़ लिए. रूब्रिक्स Delusion disgraced. सबको रूब्रिक्स पता हो गए, हिस्ट्री आपके सामने है, फिर रूब्रिक्स बताना है फटाफट. ऑनर उंडेड. ऑनर उंडेड, ओके. और डिल्यूजन डिस्पाइज. डिल्यूजन डिस्पाइज्ड. अब डिस्पाइज्ड यहाँ पे रूब्रिक नहीं आएगा. उसे ऐसा क्यों लगा कि भाई उसको लोग हेट्रेट करते हैं. डिल्यूशन डिसग्रेस्ड हो सकता है. डिसग्रेस्ड हो सकता है, ओके. और बोलो, लिस्ट आपके सामने है, कम से कम देख के तो बोलो. फिजिकल रूब्रिक एक होगा सर, पेनलेस पेनफुल कंडीशन. अरे भाई वो पैरालिसिस की वजह से पेनलेस है ना. अच्छा सॉरी सर. डिल्यूजन लेग्स कट ऑफ. डिल्यूजन लेग्स कट ऑफ, ये भी हो सकता है. वेरी नाइस. होपलेसनेस. होपलेस और हेल्पलेस. यस, बोलो फटाफट. 47 Delusion पीपल. Delusion insulted.
डिल्यूजन इंसल्टेड, ओके। और यस, कुछ लोग हैं ना बोलते नहीं है, वो मैसेज करते हैं, ये भी अच्छी एक बात है, क्योंकि वो खुद को सेल्फ डिवैल्यू कर रहे हैं कि भाई मैं बोल नहीं सकता, कम से कम मैसेज कर देता हूँ। इनडाइजेस्टिबल एंगर, स्टारवेशन, यस यस। हरिओम जी ने तो केस क्योर्ड भी कर डाली लेगेसीज देके। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, ओके। तो कैसा है मत पता है, आप लोग है ना बहुत डीप सोचते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स, बड़े बड़े रूब्रिक, बड़े बड़े मीनिंग वाले रूब्रिक्स बता दिए, लेकिन मेरी थिंकिंग बहुत वीक है। मैं बहुत सिंपल सोबर सोचता हूँ। तो हमें भी सिखा दीजिए। नहीं ना, मैं सही में बहुत ही मतलब इतने बड़े बड़े रूब्रिक पे मैं जाता ही नहीं, मेरे रूब्रिक्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक सभी केसेस में, बराबर है। लेकिन सर इसी चीज का एक दो लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। मतलब जो आपने कहा कि बहुत सिंपल रूब्रिक लेते हैं ना, हाँ हाँ, इसके लिए एक दो लोग नाराज हैं। अच्छा, क्यों? जो आप सिंपल ले लेते हैं। सिंपल रूब्रिक लेता है इसलिए नाराज। नाराज अरे है ना। जी सर। नाराज क्यों रहेंगे? सर जो है सिंपल रूब्रिक से बड़ा केस सॉल्व करते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि सर को बड़े रूब्रिक केस में उठाने चाहिए। सर के केस में ज्यादातर एलिमेंट फॉर्म होता है, तो उनका कहना है यहाँ से नहीं घुसना है। ये बड़ा रूब्रिक जो ऑटोमेन रूब्रिक है, सेल्फ डिवेल्यूशन है, वो सिंप्लिस्टिक रूब्रिक है, वहां से एंट्री पॉइंट होना चाहिए, है ना। हाँ, मतलब बड़े बड़े रूब्रिक्स है ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रूब्रिक्स लेने चाहिए ना। नहीं और मैं बहुत सिंपल रूब्रिक लेता हूँ, क्योंकि अगर सिंपल रूब्रिक से केस सॉल्व हो रही है तो डीप रूब्रिक्स, बड़े रूब्रिक्स जो बहुत स्ट्रांग रूब्रिक होते हैं, मतलब प्योर सिपिलिटिक रूब्रिक्स, इसमें बहुत बार जो ओरिजिनल रेमेडी होती है, जो परफेक्ट सिमिलिमम होता है, वो मिस हो जाता है। इसलिए सर सर ने भी जो कहा जो है कि थिंक सिंपली, है ना, जो टेक द बिग रूब्रिक। सिंपल सर रूब्रिक लो, बिग रूब्रिक लो। जो रूब्रिक्स ऐसे कम मेडिसिन के होते हैं, शॉर्ट मेडिसिन के होते हैं, है ना, जिनमें 2-4 ही मेडिसिन होते हैं, ऐसे रूब्रिक में या फिर इन रूब्रिक की वजह से हमारी जो मेन रेमेडी होती है, परफेक्ट रेमेडी होती है, वो मिस हो जाती है। फिर उन केसेस में 2-2, 4-4 बार रेपर्टराइजेशन करने का काम होता है। अब देखो इतनी बड़ी केस है, और इस केस में मैंने रूब्रिक कितने सिंपल लिए। सर वही एलिमेंट फ्रॉम आ गया सब, है ना। यस, तो जो क्लियर है, जो क्लियर कट है, वो क्यों ना ले, तो एलिमेंट्स फ्रॉम सर मल्टीप्लिकेशन। एक चीज बोलना चाह रहे हैं, ये जैसे सिंपलिटी केस है ना, तो एलिमेंट फॉर्म क्यों रखेंगे? जैसे आपने ही पढ़ाया, सर का भी हाँ, लेक्चर है, सर के आप केस जैसे। बहुत बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि भाई एलिमेंट्स फ्रॉम क्यों लेंगे, यहाँ पे डिवीजन लेना चाहिए, है ना। जी सर, बस ये हम लोग तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो इस तरह का केस है हम लोग जो सुनते आए हैं कि हम्म सर का, मैं भी जो एक दो चार भी, आप तो रहे हैं इतना दिन, हम तो एक दो चार जो वीडियो देखे हैं,
उसके हिसाब से यही कि एंट्री पॉइंट है सिपिलिटी ग्रुप डी से लेके घुस रहे हैं। ये जो एलिमेंट फॉर्म है, जो हमने आपको बात कहा ना, ये उन लोगों का यही कारण है कि सर इस तरह के रूब्रिक से क्यों घुस रहे हैं, है ना। ये ठीक हो रहा है, अलग बात है, मैं उस पर नहीं कहूंगा। मतलब वो एंट्री पॉइंट जो है वो केस का, है ना। तो कैसा है, सर ने क्लियरली कहा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उनमें नहीं लेना चाहिए, जो साइकोटिक केसेस होते हैं उनमें एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो सिपिलेटिक केसेस होते हैं उनमें आप एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हैं। और अगर आपको परफेक्ट ये मिल रहा है पिक्चर कि इस बात की वजह से ही और इस बात के बाद ही इन्हें ये प्रॉब्लम आया, तुरंत प्रॉब्लम आया, सडन प्रॉब्लम आया, बिकॉज ऑफ दिस, then you can take the elements from. हाँ, सिपिलिटिक केस में एलिमेंट फ्रॉम चलेगा। ये तो सर सोरिक है ना। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम सोरिक भी है और सिपिलिटिक भी है, तो आप एक्यूट में भी इसे ले लीजिए, और जो क्रॉनिक सिपिलिटिक एक्यूट केसेस होते हैं उनमें भी आप एलिमेंट्स फ्रॉम लीजिए। सो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस। अब वहां पे मॉर्टिफिकेशन था, ह्यूमिलिएशन था, ह्यूमिलेट किया उसे पूरे पब्लिक के सामने। जी सर जी। देन उसने एंगर सप्रेस किया, देन उसे इंसल्ट किया कि नहीं किया। हाँ, इंसल्ट तो हुआ सर। सो एलिमेंट फ्रॉम इंसल्टेड। अब देखो यहाँ पे डिलूजन इंसल्टेड मैंने क्यों नहीं लिया और एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्टेड क्यों लिया, वही पूछना जा रहे थे सर, क्योंकि उसमें ड्रग, क्योंकि सिपिलिटिक केस में लोग कहते हैं ना साइकोटिक सिपिलिटिक बड़ा केस है, डिलूजन कन्वर्ट करना है। यस, तो डिलूजन इट इज सिपिलिटिक रूब्रिक, राइट। और वो डिलूजन यहाँ लेना चाहिए कि भाई दिख तो रहा है इतना कि डिलूजन इतना इंसल्ट उसका हुआ, लेकिन उसका इंसल्ट हुआ ये तो क्लियर है ना, इतने लोगों के सामने उसका इंसल्ट किया, एक्चुअल में हुआ है। एक्चुअल में हुआ है ना। It's फिर not his उसको false क्या thing. डिलूजन हुआ कि मेरा इंसल्ट हुआ करके। Understand, he is insulted, he is abused Yes, by sir. his daughter-in-law. So that's why I have take here elements from insulted, क्योंकि इंसल्ट होने के बाद ही उसे प्रॉब्लम आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरा इंसल्ट किया, दैट इज डिलूजन इंसल्टेड, मेरा इंसल्ट हुआ, एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्टेड। तो सर ऐसे जो केस होता है ना, मैंने ऐसे मतलब अपने ही सर का ही या अमरीश सर है या वहाँ का जो वीडियो रहता है, बहुत सारा रहता है जहाँ पे आप कहते हैं कि सो रहा है तो इसको सिपिलिटिक में ले जाना है, तो डिलूजन लेके जाओ, कन्वर्ट करो, ये तो कहते ही है, पढ़ाते ही ये लोग। हाँ, पढ़ाते हैं। तो किसी का अभी मैंने नया सुना कि अमरीश सर बोल रहे थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है तो आपको एक रूब्रिक पकड़ना है, क्या, डिलूशन इंसल्टेड, इंसल्ट होने के बाद ही सर्वाइकल जाएगा। तो मैं भी एक दो जगह फॉलो किया, तो अभी आता है कोई तो सोचता हूँ पकड़ लूँ। तो डिलूजन इंसल्टेड मैंने सुना है, अब क्या सही है क्या गलत पता नहीं है। यस, तो आपको वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया क्या? समझ में तो नहीं आ रहा है, इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं। वो तो डिलूजन जो लेके जो चीज अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाना? पहले जब तक समझ में नहीं आता, जब तक उनके लेवल का नॉलेज अपना नहीं हो जाता, तब तक कॉम्प्लिकेटेड चीजों में खेलना आई थिंक अच्छी बात नहीं है। तो सर वही नॉलेज लेने के लिए तो हम लोग जाते हैं ना, हम तो जानते नहीं है, वहां से वही नॉलेज मिल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। राइट, तो अभी एक जब केस तक था, थोड़ा वेट कीजिए, जब तक हम उस लेवल के नहीं हो जाते तब तक ऐसे इतने स्ट्रांग, इतने बिग, मतलब इतने सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सिपिलिटिक रूब्रिक्स पे नहीं जाना, स्ट्रांग सिपिलिटिक रूब्रिक्स पे। यस, so internet connection is unstable, that's why my voice is in अभी अच्छा है सर, अच्छा है, क्लियर है। okay, then
The fourth rubric is involuntary stool and urination, chilly patient and thirstless. So these are 5 rubrics I have selected for this case, and after Sir, laboratorization, I got 4 remedies, that is ignitia, Steffi. natromure, staphysagrina and stramonium. So now tell me which is the right perfect remedy. Stapis, sir. Huh? Stramonium. Stapis agria. Why staphysagrina? He's a strong moralistic person and Yes. strong insult and no reaction. Strong moralistic person and having strong ego esteem, right? He also won't react. Instead, he harm himself. And staphysagrina never react, never ever react. नहीं सर, ऐसा नहीं है. फिर कैसा है? सॉरी सर, बोल दिए गलती से. स्टेफी विरोध नहीं करता है, लेकिन सते सते बाद में वो बहुत भयंकर विरोध करता है. अच्छा, हाँ सर, वो लिखा एंगर वायलेंस वो हमेशा सप्रेस नहीं करता है. सप्रेस करते सहने के बाद बहुत बड़ा आउटब्रस्ट होता है, वो एक लेवल तक जाने के बाद. सॉरी अगर हो सकता है गलती हो, लेकिन मैंने ऐसा सुना है इसलिए बोला है. अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या पढ़ा वो वहीं बताऊंगा. ओके. ओके, देन व्हाई नॉट इग्निशिया? इग्निशिया भी हो सकती सर. चिली है, थर्स्टलेस है ना, सेंटिमेंटल है, इमोशनल है. बहुत इंटेलिजेंट आदमी है सर, गांव का काम करने वाला फार्मर आदमी. वो अपने को Yes. इतना कविता इतना अच्छा, इसीलिए मैंने लेकेसी लिखा था. मैंने सोचा कि मोरल गड़बड़ होगा, लेकिन मैंने शुरू में लिखा है उसका. Then why not stramonium? He writes he is very religious person, writes poems on God, religion, है ना. तो stramonium भी हो सकता है. But he is not a panic, right? So हम one by one एक एक मेडिसिन देखेंगे. Ignitia, it is having severe grief. So elements from grief: disappointment, bad news, brooding, grief, sighs, weeps or laughs, changeable. Then aggravation, contradiction by, then conscientiousness, hysterical, spasmodic effects, pains come and gradually go or go suddenly or vice versa. बट इग्निशिया का कोई भी पिक्चर इस पेशेंट में नहीं दिख रहा है ना. कोई ब्रूडिंग नहीं है ना. सो इग्निशिया वाज रूल आउट. नाउ नाइट्रोम्यून ये हॉट है इसलिए वैसे ही रूल आउट हो जाता है. फिर भी एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, फ्राइट, डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है, एग्रेवेशन बाय सन होता है, कंसोलेशन एग्रेवेट होता है, सिंपैथी एग्रेवेशन होता है, वेरी रिजर्व्ड, रिवेंजफुल. यस, नाइट्रोम्यून इज रिवेंजफुल. सैडनेस, वीप्स विदाउट नोइंग व्हाई, उसे ही पता नहीं होता है कि मैं क्यों रो रहा हूं, बस रोते रहता है. ग्रेट वीकनेस एंड वियरीनेस. देन स्टेपिसाग्रिया, having elements from anger suppress, mortification, insulted, very sensitive to slightest mental impression. This is very important, very sensitive to slightest mental impression. और इस पर्सन के साथ भी वही हुआ. Least action or harmful word of it. Least action और थोड़े से भी हार्मफुल वर्ड्स अगर उसके सामने किसी ने निकाल दिए तो हो गया इस पर्सन का. देन एपेथेटिक, इंडिफरेंट, लो स्पिरिटेड, वीक मेमोरी, वाज इंसल्टेड, बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट. देखो
बहुत ही अच्छा रुब्रिक है ये. Was insulted, being too dignified to fight. फाइट ही नहीं कर पाता. Subdued his wrath and went home sick. ऑन द स्पॉट तो ये कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं. कितना भी इसे बोलो, कितना भी कुछ इसके इंसल्ट करो, कुछ भी करो, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन उस टाइम पे, उस स्पॉट पे ये कभी कुछ नहीं करेगा. वैसे ही निकलेगा घर पे जाके फीवर, इल. यस, इसीलिए बहुत अच्छा रुब्रिक ये दिया है. Was insulted, being too dignified to fight, subdued his wrath and went home sick, trembling and exhausted. So this is Staphysagra. स्टैमोनियम देखो, एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइट होता है, वायलेंस होता है, एंगर होता है, फियर ऑफ डार्क होता है, बीइंग अलोन होता है, डिस्क्राइब एज डिवियस, किक एंड बाइट, कैन नॉट कंट्रोल टेम्पर. अगर वो स्टैफिसाग्रा होता था तो इतना पैनिक हो जाता था वहां, लेकिन वैसे हिस्टेरिकल रिएक्शन उसकी थी ही नहीं. देन पेनलेस कंप्लेंट, लोकेशियस, स्टैमरिंग, डिजायर कंपनी एंड लाइफ. सो Stamonium also ruled out, and the remedy was Staphysagra. So Staphysagra 200 single dose was given, and now see the follow-ups. क्या दिख रहा है आपको? Feeling good. Healthy Yes. granulation. Formation. Granulation. It start. Granulation. Yes, the part become Pink. pinkish red. New generation of tissues. That is good sign. तो ये बेड सोवर पे ये हमें प्रोग्रेस दिखा. नाउ पैरालिसिस में क्या होना चाहिए? Movement first. मूवमेंट Sensation. चाहिए, सेंसेशन फंक्शन आ जाना चाहिए, राइट. दैट मीन्स अगर ये हो रहा है तो हिमेंजियोमा भी हिल हो रहा है, राइट. सी द मूवमेंट. ये बेड सोर देखो कितना हील हो गया. Yes, then second follow. संडास नाही झाली आज. संडास नाही झाली आज. नाही. काल किती झाले? कशा झाल्या? पातळ संडास झाल्या. ताप वगैरे? कधी संध्याकाळी येते, कधी दिवसाही. जखमच्याच ठिकाणी. फीवर.
Now he is complaining of fever with pain, burning pain at the site of wounds, bed sores. जखम दुखते आग होते बरं पायात आग So it is good sign. और आप देखो पहले उनको सर्वाइकल भी स्टार्ट हो गया था. नाउ सर्वाइकल इज कंप्लीटली ओके, कंप्लीटली बेटर. होते कसे He is telling about his dreams. Nowadays he is seeing dreams and dreams of walking, wandering. कितनी अच्छी साइन है ये, है ना? That means Sora is re-establishing here. Yes, sir. कसे म्हणजे फिरून राहिले चालून राहिले अच्छा चालून राहिले असं दिसते स्वतः See, now you can see the bed sore. Now see the healing. कितना बिग था ये, कितना डीप था. थोड़ी फीलिंग है सर पूरी, एकदम राउंड राउंड आराम से. Third follow. हलवा दोन्ही पायाला जवळ घे Very good movements. He can do the exercise himself. आई करता करा 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 नाव टाका Now the bed sore, you can now see how the healing is completed now, going towards completion. Only superficial wound remain. And the last follow. See the smile of this person. Very nice. कसं वाटतंय? बरं वाटतंय. करा लांब, करा. हा करा ना, घ्या मागं पुढे करा. अच्छा. हा पाय इतना बड़ा 150 था ये स्काल. और ये देख कितना बिग पूरा
पाय माने बरोबर Yes. So I am extremely sorry कि मैं इनका लास्ट फॉलोअप नहीं ले पाया, बिकॉज ये जो हमने अभी लास्ट फॉलोअप देखा, 4th फॉलोअप, इसके बाद ही वांट टू गो होम। ये पेशेंट मेरे पास 6 मंथ एडमिट था, 6 मंथ तक मेरे यहाँ ये एडमिट था। उसके बाद जब वो वॉकर पे चलना शुरू हो गए तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मैं एक 15 दिन बोले घर पे जाके आता हूँ, 15 दिन घर पे रहता हूँ, उसके 15 दिन बाद मैं आपको वापस दिखाने आऊँगा। अगर मुझे वापस आपको ऐसा लगा कि एडमिट रखना है तो मैं रहूँगा, नहीं तो फिर चले जाऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने इनको डिस्चार्ज दे दिया, पेशेंट घर पे गया। एक 8-10 दिन पेशेंट बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली उसमें घर पे जाने के बाद इम्प्रूवमेंट हुई। वॉकर के साथ ये मस्त चलता था। देन एक दिन कुछ उनका ऐसे उन्होंने कुछ रिलीजियस फंक्शन रखा था, समर डेज थे, और पेशेंट को सनस्ट्रोक होके डायरिया हुआ। और डायरिया होने के बाद वो इतना अनकंट्रोलेबल डायरिया था, क्योंकि सिपिलिटिक कुछ ना कुछ वहाँ और भी कुछ बाकी था। तो उस सिपिलिटिक फैक्टर ने सीवियर डायरिया उस पर्सन को हुआ, और डायरिया होने के बाद बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन पेशेंट की डेथ हो गई। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर मी कि इतनी अच्छी केस क्योर हुई with a single dose of staphysagria, or that सर यदि ये आप soric symptoms come, that is diarrhea, but अगर वहां कुछ सिपिलिटिक बाकी है तो that सोरा रिवर्स होने को टाइम नहीं लगेगा and goes into सिपिलिटिक। that जो उस स्टेज पे सिपिलिटिक आएगा, it is वेरी बैड सिपिलिटिक। यस, अगर वो पर्सन शायद हॉस्पिटल में होता था, उसे लूज मोशंस भी होते थे, दैट इज गुड साइन। सोरिक कंप्लेंट आए तो शायद हम उसका डिहाइड्रेशन कुछ आईवी फ्लूइड्स देके या फिर कुछ रिहाइड्रेटिव ये देके उसका कम हो जाता था रिहाइड्रेशन से। बट वहां उस विलेज में because of no availability of medical source facilities, and he died. Yes, so this was the case. लेकिन सर कैसे मान सकते हैं कि सही प्रिस्क्रिप्शन हुआ? इतना जैसे देखिए अपने को आपके मन में भी होगा, इतना भयंकर सिफिलिस आया कैसे? डायरिया तो सोरिक डायरिया होना चाहिए ना, ये जानलेवा डायरिया कैसे हो गया? जानलेवा क्यों हुआ? क्योंकि वहां कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। उसका जो डिहाइड्रेशन हुआ वो रिहाइड्रेशन कवर ही नहीं हो पाया। अगर उसे आईवी फ्लूइड्स मिलते थे शायद तो बच सकता था, या फिर कोई मेडिसिन मिलती थी तो बच सकता था, राइट? और सिपिलिटिक तो पूरा गया ही नहीं था बॉडी में से, तो सिपिलिटिक तो वहां था ही। तो सोरा रिवर्स अगर होता है तो डायरेक्ट सिपिलिस पे ही जाएगा, वहां साइकोसिस नहीं आएगा। यस सर लेकिन ऐसे टाइम पे और अगर मेडिसिन राइट नहीं रहती थी तो उसे सोरिक कंप्लेंट्स आते ही नहीं थे ना। विजिटेटिव कुछ तभी अगर मेडिसिन सपोज मेडिसिन पार्शियल सिमिलम रहती थी तो वहां पे विजिटेटिव कुछ तभी इंप्रूवमेंट होती थी और बाकी एज इट इज रहता था। लेकिन पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू हेरिंग स्ट्रॉ नीचे आया, उसे लूज मोशंस हुए, ड्रीम्स में भी हमें हेरिंग्स लॉ दिखा, फीवर आया,
फीवर। ना फीवर आया तो इस पर से आप ये नहीं कह सकते कि मेडिसिन रॉन्ग थी, मेडिसिन वाज परफेक्ट सिमिलिमा। अगर मेडिसिन परफेक्ट सिमिलियम नहीं रहती थी तो इतने डीप स्ट्रॉन्ग डीप सिपिलिटिक अल्सर्स कैसे हील होते थे? सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि स्टैपी नर्व से अक्यूट मेडिसिन से इसमें क्रोनिक देना पड़ेगा इसका, उसके रिलेशन में जाके। यस, तो अब ऐसे केस में हमें एंटीसोरिक का लास्ट में काम पड़ेगा। अच्छा, तो हो सकता है कि उसे जब सोरिक कंप्लेंट आए, फीवर सोरिक कंप्लेंट आए, तब हमें शायद एंटीसोरिक वहां देनी पड़ती थी केस लॉक करने के लिए। यस। यस सर यदि डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि जब तक पेशेंट फ्री ऑफ सोरा नहीं हो जाता है तब तक पेशेंट को छोड़ना नहीं, जब तक वो कंप्लेंट लेस नहीं बन जाता तब तक उसे छोड़ना नहीं। सर और जब हॉस्पिटल में उसको फीवर आया तब आपने स्टैफी का डोज दिया ही नहीं, नो बस नो वो नो अपने आप नो चला गया। नो फीवर ऑटोमेटिक सबसाइड हो गया विद इन 3 days। पर ऐसे वक्त यदि हाई फीवर रहेगा यानी 100 से ऊपर रहेगा तो भी नहीं। उसे हाई फीवर ही था, 102 103 तक जाता था, क्योंकि उसे सिवरिंग भी काफी होती थी। और सिवरिंग का एक मेन रीजन ये भी था कि लैक ऑफ एनर्जी। आप उसके बॉडी स्टेटस पर से आप देख सकते हैं कि उसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसका कितना, क्योंकि वो इतने फास्ट करता था, न्यूट्रिशन बहुत ही लैक ऑफ न्यूट्रिशन था, इस वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बहुत लेस था। यस। अगर फीवर में अपने को कुछ मेडिसिन चेंज नहीं करना पड़ा तो डायरिया के लिए भी वर्क करना चाहिए था स्टेपिसाग्रिया। यस करते थे, तो उसे स्टेपिसाग्रिया एटलीस्ट रिपीट करना पड़ता था। तो अभी वर्क नहीं करा, जैसे 6 महीने वर्क करा स्टेपिसाग्रिया ने, हाँ, उसके बाद नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि स्टेपिसाग्रिया लाइफ लॉन्ग वर्क करेगा। हाँ, So is it need to repeat the same dose? सर या तो उसे जब आपने डिस्चार्ज दिया तभी एक डोज दे देते तो स्टेपिसाग्रिया साथ में देते थे। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि हम पट से आ जाएंगे, इतने दिन नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी तो बहुत अच्छा है, चल रहा है, तो पेशेंट चलने भी लग गया है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, ओनली एसएल आई हैव प्रिस्क्राइब्ड। बहुत सीखने को मिला सर एक केस में सर। थैंक यू। सर अगर बाय चांस अभी ये पेशेंट को वहाँ पे इनकेस मेडिकल अगर हेल्प मिलता था एंड इफ सम एलोपैथ हैज प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिंस एंड सप्रेस करते थे डायरिया वगैरह उनका, तो देन हाउ वी यूज्ड टू गो विद इट? ओके, चलो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर कंसे ने निकाला है। तो लाइफ सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे अगर उसे कोई एलोपैथ भी ट्रीट करता था और उसका लूज मोशन सप्रेस भी होता था, तो क्या होता था? इतने फास्टली तो वो वापस रिकवर हुआ सर, हिमेंजियोमा पे भी जाता नहीं था। जी जी जी, है ना? जी सर। यस, तो अगर उसके लूज मोशन भी स्टॉप होते थे या फिर हम उसे बिकॉज ऑफ एलोपैथी सप्रेस भी होते थे, तो हम उसे सपोज एक आधा डोज देके शायद वो निकल भी सकता था उसमें से, या फिर हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो वो रिटर्न भी नहीं होता था, रिवर्सर भी नहीं होता था केस। And sir, same Steffi only would have been repeated. और एक डॉक्टर कंसे, एक मेरा भी एक्सपीरियंस आपको बोल देता हूँ। कभी कभी है ना, कोई केसेस में, नॉट ईच एंड एवरी बट सम केसेस में कुछ टाइम पे एलोपैथिक एड्स भी बहुत काम में आ जाते हैं। कभी कभी एक आधी बार, जैसे कि बहुत पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि फीवर है, 3-4 दिन फीवर है, हमने मेडिसिन दिए, एक्यूट मेडिसिन दिए, कभी कभी रिपीट भी करने का काम पड़ता है। लेकिन एक आधी बार क्या हो जाता है कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, ओके पेशेंट नो कंप्लेंट, और सपोज पेशेंट को बोल दिया कि ठीक है आज आपने बहुत फीवर है तो एक आधी क्रोसिन ले लेना, और उसके बाद उसे फीवर ही नहीं आता है।
तो कई कहीं केसेस में, बहुत से केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि एक आधी बार एलोपैथिक मेडिसिन भी हेल्प कर देती है, हेल्पफुल बन जाती है उन केसेस में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद कोई इससे सहमत ना हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, कभी कभी वो हेल्पफुल बन जाती है। यस यस डॉक्टर कंस, आप और कुछ कह रहे थे? अगर सेम पेशेंट जब भी डायरिया होता था एंड इफ एट ऑल इफ वुड हैव टू गिव द मेडिसिन, तो स्टैफिसाग्रिया रिपीट करते थे कि व्हाट वर द इंडिकेटेड टोटलिटी तभी करना था इसे? यस, अगर वो पेशेंट मेरे यहाँ होता था तो शायद मैं पहले रिपीट नहीं करता था, उसे रिपीट नहीं करना चाहता था। लेकिन इफ द लूज मोशंस बिकम severe or the patient become dull, then I will repeat the Staphysagrina first. Yes, thank you. ऐसे वक्त में सर चार्ट से भी जा सकते थे क्या अपन? अब वो कंडीशन देख के करना पड़ता था। अब इसमें अभी ये होता था क्या, वो होता था क्या, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद क्या सिम्टम आते थे, फिर उसे रेपर्टराइज करके जाना ठीक रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में से जाना ठीक रहेगा, या फिर सेम मेडिसिन कंटिन्यू करना ठीक रहेगा, या फिर चार्ट यूज करना, है ना। तो ये डिपेंड करता है केस के किस कंडीशन पे, जो भी इसकी उस टाइम पे कंडीशन रहेगी उससे रिलेटेड आपको अकॉर्डिंग टू रेपर्टरी नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन रिलेशनशिप नॉलेज, इस पर से आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। यस सर, आपके यहाँ पे जब एडमिट रहेगा वो और डायरिया है, तो आप लाइफ सेविंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते थे या फिर इसे लेकर ही वेट करते थे? नहीं समझा नहीं, मुझे क्या बोले आपने? एडमिट, आप 6 महीना एडमिट था ना वो। हाँ अगर हाँ। समझो ये सीवियर डायरिया है और ऐसे वक्त अगर मतलब वेट एंड वॉच ही करना है मेरे को, तो साथ में फ्लूइड रिप्लेसमेंट मतलब आई फ्लूइड या फिर ओआरएस या फिर रिहाइड्रेशन ऐसा हम कुछ करते हैं। करते हैं जहाँ ना? हाँ। जहाँ बहुत डिहाइड्रेशन हो चुका है वहां पे आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ओके, आईवी फ्लूइड्स या फिर सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल वगैरह ऐसा कुछ देते हैं? सप्लीमेंट्री भी देते हैं, न्यूट्रिशनल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यस ये भी देते हैं। ठीक है सर। सर पेशेंट आप एडमिट ओनली स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक नहीं देते। सर पेशेंट को एडमिट करते हैं अपने यहाँ? हाँ। तो बड़ा टफ काम है। हॉस्पिटल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। एक रिक्वेस्ट है, तो कितने 4 बेड्स है ना शायद? 4 बेड्स है, यस। ओके सर, हाँ मैंने देखा उसे। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए सर, आप 6th एडिशन ऑर्गन पढ़ रहे थे पहले, आपने बताया। तो अभी सर क्या मतलब 6th एडिशन में जीरो पोटेंसी के बारे में लिखा हुआ है ना, ELM पोटेंसी जो। हाँ हाँ। तो उसके बारे में क्या सर, जैसे ये जो नहीं, केस वो मेरा कंप्लीट पढ़ना नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा ये आ गया था मिसेस का, तो इसलिए मेरा 2 महीने से उस बिल्कुल पढ़ना नहीं हुआ। इस तरह के केस में सर ना, जैसे आपका केस तो अच्छा था लेकिन वो पेशेंट उधर में गड़बड़ हो गया। जीरो पोटेंसी का हम जो 2-4 लोगों के यहाँ देखते हैं, रिस्पांस बहुत ज्यादा है, अच्छा है, बहुत फास्ट है। जैसे इस केस को ठीक होने में 6 महीना लगा, 200 एक डोज दे के देखे, शायद ये जीरो पोटेंसी में 1-2 महीने में ठीक हो जाता। भैया ये जादू नहीं है, ये नेचुरल हीलिंग होता है। इतने बड़े डीप अल्सर आप डॉक्टर कंसे को पूछिए एलोपैथी में कितना टाइम लगता है, 6 महीने में तो इतने प्रोग्रेस हो गए हो, है ना। नहीं वो तो सर देख के ही डर लग रहा है, इतना बड़ा था। अरे ग्राफ्टिंग करना पड़ता है कभी। नहीं होते हो ग्राफ्टिंग करने के बाद भी। वो जीरो पोटेंसी दो कि कौन सी भी पोटेंसी दो, इतना फास्ट क्योर इम्पॉसिबल। नेचर के आगे कोई नहीं जा सकता। अगर सिंगल डोज से इतना बढ़िया क्योर हुआ। हमने देखा था सर ना, मेरे कॉलेज में एक डॉक्टर टी राय थे, वो यूज करते थे
जीरो पोटेंसी, और जब पेशेंट को बीच में कुछ प्रॉब्लम होता था जैसे डायरिया फीवर, तो उसी को ना 2-3 कप में उसी दवाई को ना डाइल्यूट करवाते थे, उसी को पिलाते थे, उसी से कंप्लेन चला जाता था। यस अभी क्या तरीका है, लेकिन वो दवा फिर वो उसके हैंड में हमेशा रहता था। तो जैसे अगर कोई कंप्लेन आया तो उसी दवाई से कंफर्म हो जाता था। ये चीज देखा था तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए आज चर्चा कर ली आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा है, जो रियल है, जो रियल है, जो हैनेमन ने कहा है उस पे बिलीव कीजिए। जीरो पोटेंसी अच्छी काम करती है सर, मेरा खुद का अनुभव है सर। हाँ बिल्कुल करती है, हैनेमन ने ही निकाली है ना। बरोबर। बिल्कुल करती है वर्क, लेकिन एडवांस वर्जन है उसका सर। कब यूज करना है, उसे कब यूज में लाना है, इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए, और सही तरीका क्या है यूज करने का। आप हर केस में नहीं दे सकते, है ना। जीरो पोटेंसी का तो हम भी करते हैं, एक्यूट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट है, डाइल्यूट करके मेडिसिन देते हैं सिंगल। जैसे कि एक्यूट में मोस्ट टाइम हम ऐसा करते हैं कि मेडिसिन डोज देने के बाद मोस्टली, जैसे कोरोना केसेस में मैंने ये बहुत किया, बहुत मतलब 100% किया कि एक सिंगल डोज पहले दे देते थे और नेक्स्ट डे देखते थे कि पेशेंट को कितना रिलीफ है। अगर पेशेंट बोलता है मुझे 25-30% अप टू 40% रिलीफ हो गया, तो हम उसी मेडिसिन को डाइल्यूट करके, मतलब 1 ग्लास पानी में उसका 1 ग्लोब्यूल 2 ग्लोब्यूल डाल के उसको घुमा के उसमें से ओनली 1 चम्मच पानी पीने को बोलते थे, तो उससे और रिकवरी फास्ट होती थी। नेक्स्ट डे वापस हम पेशेंट को पूछते थे कि भाई कल से आज कैसा लग रहा, पेशेंट बोलता कल से और आज अच्छा लग रहा, तो वापस 1 स्पून उसमें से वापस ये करके वापस लेने को लगाते, तो 3rd डे 4th डे पे ही विल बी कंप्लीटली क्योर। सर पेशेंट को ओपीडी में बुला के डोज देते थे, साथ में नहीं देते? नो, पेशेंट के साथ में ही देते थे, एक पूरी एक्स्ट्रा दे देते थे साथ में, लेकिन बोलते थे ये हम बोलेंगे तो ही इसे यूज में लाना है, अदरवाइज नो। ओके। तो ये एक्यूट में ये जो केस है इसमें डेथ हो गया, तो इसके बारे में प्रफुल्ल विजय सर बोलते थे कि ये उसका डेस्टिनी था, वो उसकी मौत तो होनी थी, पर आपने उसको विथ पेनफुल डेथ नहीं, वो उसका वो डिक्यूबिटस अल्सर, अगर उसमें तो कीड़े पड़ने वाले थे, वो नहीं हुआ, उसका लाइफ है, वो हैप्पीली मरने वाला तो था ही वो, पर वो हैप्पीली मरा। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई? आप ये सोचिए ना कि वो कंप्लीट क्योर हुआ, उसे सोरिक सिम्टम आया लास्ट में, जो अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ है ना, मायाजम रिवर्स हुआ, और बिकॉज ऑफ उसे कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली, दैट्स व्हाई उसकी डेथ हुई। उसकी बिकॉज ऑफ डिजीज डेथ नहीं हुई ना। यस सर, बिकॉज ऑफ डिसीज नहीं, उसका डेस्टिनी था उसका। वो ठीक है। अब जब कुछ कहने को नहीं मिलता, जब कुछ एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं रहता, तो सब लोग डेस्टिनी पे जाते हैं, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा। उसे अगर उस वक्त ट्रीटमेंट मिलती थी, मेरे यहाँ रहता था, तो उसकी डेथ नहीं होती थी, क्योंकि उसे मेडिसिन अगर मिलती थी तो वो बच जाता था, क्योंकि सोरिक सिम्टम थे, बट दैट वाज लैटेंट सोरा जो एग्जैगरेटेड हो गया। सर, और एक बात अच्छी है कि आप पूरा जेन्युइनली शेयर करते हैं, करके दे डू अंडरस्टैंड ऑन दिस। नहीं तो ठीक हुआ पेशेंट इधर तक बोलते हो, बाद में चेक करो, चलो पेशेंट चलने लगा घर पे। अच्छा बात डॉक्टर साहब ने कहा है ना। यस राइट ना, ये जेन्युइनली एक्सपीरियंस से शेयर करना भी बहुत एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातों से भी तो सीखना चाहिए। एकदम सही है सर। हाँ, और सर का जो वे ऑफ अप्रोच, और कैसे केसेस को एनालाइज किया, एंड हाउ द डिसीज प्रोग्रेस, हाउ द रिकवरी प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, दैट इज डे बाय डे और पार्ट बाय पार्ट जो सर ने एक्सप्लेन किया ना, दैट इज व्हाट इज अ लर्निंग। बाकी तो सब इमेजिनेशन, डेल्यूजन सब है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द वे ही इज कन्वेड अस। यस, थैंक यू डॉक्टर कंसे, यू आर वेरी काइंड पर्सन। यस, थैंक यू। प्रफुल्ल विजयकर सर यही तो सिखाते थे कि फिशिंग फिशिंग फिशिंग। सर आपने ये बहुत जबरदस्त फिशिंग सिखाई। फिश नहीं खाने को, फिश नहीं, फिशिंग सिखाना। यस, बार बार सर बोलते थे।
रिजल्ट दिखा दिया, ये ऐसा हो गया, बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं, है ना? ये नहीं, Yes, sir. सब कुछ दिखा दो, सब कुछ बता दो, है ना? इन केसेस ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी पेशेंट के साथ हो सकता है, तो आगे क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप डायलेमा में रहेंगे कि ऐसा हुआ, फिर मेडिसिन रॉन्ग हो गई थी क्या? नहीं, मेडिसिन वाज करेक्ट, अगर वो नहीं करेक्ट नहीं होती थी तो इतना हीलिंग नहीं होता था। यस, थैंक यू डॉक्टर। सर आप तोड़ा में हो। सो आज बहुत टाइम हो गया, सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया, एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों आपने ने। टाइम हमने आपका बहुत टाइम लिया। थैंक यू, सॉरी मत बोलिए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के Thank you, सभी sir. के अप्रिशिएशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक you, sir. यू। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।